Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Yahya and I am your computer teacher. Welcome to lecture number 1 of class 8 and 9. Yes, you heard it right. It's both class 8 and 9 at the same time. Because there's a little change in course of board of synth. They have divided computer in both 9 and 10, so we have to manage the course accordingly. So we are taking a few chapters from 9 class into 8 class rather than studying the whole book in 9 class. We will be studying it by dividing it in 8, 9 and 10. So we are starting today with the very first chapter of the book, an introduction to computer. So the board have divided your chapters into two halves. The first half contains these chapters: Introduction to Computer, Computer Components, Input Output Devices, Storage Devices, and Computer Software. And the second half contains data representation, Boolean algebra, and introduction to Windows. So they have divided these chapters according to their topic. They have put the same topic chapters in one group and the same topic chapters in other group. So we will be studying the first group, because in 8th class you will be studying course of chapters of 9th class. So let's get started. So this is summary web of chapter number 1. These are the topics that we will be discussing in chapter 1. That is definition of computer, hardware and software, history of computer, generation of computers, types of computer, computer by purpose, computer by size. Okay, so these two topics, computer by purpose and computer by size, students get कंफ्यूज इन इट एंड दे अक्सर ऐसा होता है कि अगर सवाल में पूछा है कि कंप्यूटर बाय पर्पस का जवाब के हवाले से कोई सवाल है तो वो इस कंप्यूटर बाय साइज का लिख देते हैं पेपर में और फिर जब नंबर कट जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने तो पूरा लिखा था। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स की खुद समझ में इश्यू हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते कि सवाल क्या था और वो गलत आंसर लिखने पर फिर नंबर नहीं मिलते। सो इंटरनेट, उसके फ़ायदे और नुकसानात का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद टाइप्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर विद टाइप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स कोड, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड. So these are the topics we will be discussing in this chapter. What is computer? Computer is an electronic device that accepts data and instructions in the form of progress as input, process the data according to the given instructions and produce information as output. यानी कंप्यूटर की एक बेसिक साइकिल है कि आप सबसे पहले आप इनपुट देंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे कि उसे क्या करना है। आपके गिवन इंस्ट्रक्शन पर जो आपने डाटा इनपुट दिया है उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और फिर उस प्रोसेसिंग के बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसको एज ए इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये कंप्यूटर की बेसिक साइकिल है और बेसिक पर्पस है ये। So in this video we will be focusing more on hardware and software, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हार्डवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर है। वो कब कब किसी भी सॉफ्टवेयर को वो हार्डवेयर की कैटेगरी में रख देते हैं, किसी भी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रख देते हैं। और ये बहुत बेसिक सी बात है। अगर किसी स्टूडेंट को ये बातें ना पता हो, ये बातें ना समझ आई हो तो वाकई में दे डोंट डिज़र्व नंबर्स, दे डोंट डिज़र्व मार्क्स, क्योंकि बहुत ही बेसिक बातें हैं और बहुत ही आसान बातें हैं जिन्हें आराम से समझा जा सकता है इस लेवल पर आकर। So, the physical or tangible components forming a computer are called hardware. It includes not only the computer but also the cables, connectors, power supply units, and peripheral devices such as the keyboard, mouse, audio, speaker, input, and printers.
तो कंप्यूटर सिर्फ वो नहीं है जो आपके मॉनिटर स्क्रीन है और सीपीयू है, बल्कि वो सारे हार्डवेयर डिवाइसेस, वो सारे फिजिकल डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं इनसाइड द कंप्यूटर और आउटसाइड द कंप्यूटर, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर इजीली यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू। द टर्म सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द नॉन फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, मेमोरी के अंदर, जिनको हम रन कर रहे हैं, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो सॉफ्टवेयर है। इवन के हमारी जो विंडोज़ है, वो जो विंडोज़ में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे पेंट हो गया, और जैसे नोटपैड, और हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, और जैसे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तमाम सॉफ्टवेयर्स, हम कोई गेम खेलते हैं वो सॉफ्टवेयर है, हम कोई जितने भी एप्लीकेशंस जो हमारे कंप्यूटर के यूज़ को यूज़फुल बनाती हैं, एक्सपीरियंस को अच्छा बनाती हैं, वो सारी एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जो हम सॉफ्टवेयर का जो चैप्टर है बाकायदा एक पूरा, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल से। यहाँ पर सिर्फ इनके हम बेसिक्स को पढ़ रहे हैं और डिफरेंस को। तो ये हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब इनके डिफरेंस को थोड़ा देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हार्डवेयर फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी जो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है? अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। यानी बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो भी एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, कि जो कंप्यूटर को बताता है करना क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात लिखी है। Hardware has four main categories: input devices, output devices, secondary storage devices and internal components। यानी input output devices ठीक है, storage devices ठीक है, और internal components जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। सॉफ्टवेयर इज मेनली डिवाइडेड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको हम मज़ीद डिटेल में जो हमारा सॉफ्टवेयर का चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। हार्डवेयर आर टेंजिबल एंड सॉफ्टवेयर आर इनटेंजिबल। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, हम उनको फील कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। हार्डवेयर डेवलप्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल्स। इनको इलेक्ट्रॉनिक जो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बना है। और सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है हम उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से बनाते हैं और डिज़ाइन करते हैं। तो उनको किस तरह बना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से बनाया है। हार्डवेयर व्हेन डैमेज्ड इट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू कंपोनेंट। जब हार्डवेयर ख़राब हो जाए, माउस ख़राब हो गया, कीबोर्ड ख़राब हो गया, रैम ख़राब हो गई, उसको हम चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जब सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए तो व्हेन डैमेज्ड इट कैन बी री इंस्टॉल यूजिंग अ बैकअप कॉपी। सॉफ्टवेयर जब ख़राब हो जाता है तो हम उसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं सीडी के ज़रिए से, या जो भी हमारे पास यूएसबी में है, इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो हम उसको री इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले वाले वर्जन को रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती फिजिकली, जैसे हमारे हार्डवेयर में होती है। हार्डवेयर स्टार्ट्स फंक्शनिंग वंस द सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू द सिस्टम। जैसे ही सॉफ्टवेयर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाता है, तो हार्डवेयर की जो हम वर्क है देख लेते हैं। जैसे कि जब तक विंडोज़ लोड नहीं होती, हमारा माउस का कर्सर मूव नहीं कर रहा होता, कीबोर्ड प्रेस करते ना कुछ नहीं हो रहा होता, तो ये जैसे ही वो लोड हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हार्डवेयर वर्किंग में आ जाता है। सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर टू फंक्शन। यानी सॉफ्टवेयर को हमें पहले से इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हार्डवेयर को हम उसी हिसाब से वर्क करवा सकें। यानी सॉफ्टवेयर खुद ब खुद नहीं होता, जिस तरह हमने हार्डवेयर कनेक्ट कर दिया और वो काम करने लग जाए, इस तरह ऐसे नहीं होता। बल्कि क्या होता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है पहले से। एग्जाम्पल्स: कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम एंड रोम, ये हार्डवेयर की एग्जाम्पल्स हैं। और सॉफ्टवेयर्स की क्या हैं? एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, फोटोशॉप, ये सब सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गए थे कुछ डिफरेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। आपने क्या करना है? आपने मज़ीद डिफरेंस फाइंड करने हैं इसके।
ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपने सबसे पहले तो टाइटल पेज बनाना है आप अपनी नोटबुक में। उसके बाद आपने जो ये डिफरेंसेस हमने पढ़े और आपने मज़ीद डिफरेंसेस इसके सर्च करने हैं और उनमें जितने ज़्यादा आप लिख सकते हैं डिफरेंसेस अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट जो फिर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसका होमवर्क उसके साथ दे देंगे। फ़िलहाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।